Okay, so the Rishikesh asked last question. We'll take that also. Okay, so let me start, guys. Good morning once again to everyone, those who are joining lately. So let me focus on every question so that everybody's question will be, so you'll not be able to chat right now. But definitely I'll take questions from you once I solve most of the questions which are asked till now. Okay, so there are many questions and there will be many answers. No question is so much having any fixed answer. First of all, try to understand means किसी क्वेश्चन के लिए कोई फिक्स आंसर नहीं है, but still all questions will be answered in my perspective. Means what Kiran says is his perspective, and Kiran's perspective is widely accepted most of the people because Kiran is experienced person who has a lot of experience dealing with the student queries and many more things, dealing with the freshers as well as experience and have a industrial experience. So जो मेरा opinion रहेगा वो majority of people they are accepting. तो ये चीज होती है. बाकी हर क्वेश्चन का आंसर आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव को देखोगे तो अलग अलग मिलेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, टेस्टिंग के लिए एसक्यूएल में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? यस, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज you must know all types of SQL queries. All types means DTL आ गया उसमें, TML आ गया, then DCL आ गया, but DCL only informative चाहिए, information, or I would say knowledge, only knowledge, because this DCL is handled by database administrator, not by developer or a tester. Okay. Then DQL is there, data query language, which will be select query maybe. Then aggregate functions you should be knowing. And then you must know the joins. Joins also has inner join, then outer join, then self join. Then knowledge about trigger. Now, knowledge about trigger means one liner at least you should know why trigger, why stored procedure. I'm saying only knowledge. Only knowledge. At least some information. Not knowing in detail is okay. Is perfect, I would say. So only knowledge is needed, like something there is a trigger, something there is stored procedure, something there are views. All these things are just knowingly आपको पता चाहिए कि भाई ये चीजें होती है. So this is what the answer, guys, you need to follow for testing. So for testing, SQL is very important. Don't think like बिना SQL से आपका काम हो जाएगा. No, it is not going to happen. You must be knowing SQL. You must be knowing SQL. There is no option. Okay. So those who are preparing for testing, you must be well aware of all these things. Do practice. आपको 2 टेबल बनाने हैं, उसके ऊपर ज्वाइन लगा के देखने हैं. You need to create one table with some data and try to some queries on it, some manipulative queries like the product having cost more than 500 and less than 700, like that things you can do, or the products which name starts with the K, name starts with P, like that questions will be there. So I hope you will be preparing on that. So it's very simple to do. Practice बहुत simple होती है, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला काम नहीं है. So this was the answer for your question, the person who has asked. Okay. So hopefully you understood, those who have asked this. Okay. I don't want any new questions. Just you can say yes or something because I already took up the questions. Now I'm going to answer those all questions first. Anybody want to ask any counter question on this? Anything on SQL? So this session will be systematic actually.
So please ask any question which is related to this question. Anyone want to ask any question on this? Please go ahead. Write down on chat box. No. No problem guys. Okay. So सब लोग ये करना है. डेवलपर के लिए भी इतनी ही चीजें है. मतलब don't think like a developer or a tester having a simple thing. Okay. Okay. It is the same. So yes, when somebody wrote this, yes, you should know this also, but that comes under creation of table. Primary key, all this key, you should be knowing. Yes, correct. Thank you, Ganesh. So this is it, guys. That's it. Next. Sir, what is the difference between Java full stack and JavaScript? So now, see here, guys. This is one more confusion. New people might be having this question, those who have not learned complete syllabus. In this, Java full stack की जब हम बात करते हैं, when you talk about Java full stack, means Java full stack. So you should know everything. मतलब एक जो वेबसाइट बनती है, if one website is there, तो उसमें क्या क्या आता है पहले, you should be knowing that. So first thing in that website there is a UI. Then in UI you need to use HTML, CSS, JavaScript. So first thing is UI. In UI you use JavaScript, you use HTML, you use CSS. Okay, you use Angular, you use React, So all these things are related to UI. So जब हम full stack बोलते हैं, full मतलब मुझे सब आता है, that time you should be very well aware about this UI technologies. Then from UI request goes to the backend. Request goes to backend. Request मतलब जो हम बटन दबाते हैं ना, वो वाली चीज. ठीक है. So that is a backend. Now which technology is related to backend? So you will have Servlet, but very less. Then you can have a Spring Boot, which already has Spring inside. Then Hibernate. Then you have Servlet, Spring Boot, Hibernate, that is REST API, you should be knowing. Okay. So these are the things which are needed if you want to, and JSP, but JSP and Servlet is less use. These days, nobody is using those technologies. Okay. So इसमें क्या क्या आना चाहिए? Servlet हो गया, then Spring Boot हो गया, then Hibernate हो गया, REST API हो गया, JSP हो गया. Then request comes here to database. यहाँ से जाती है database में, where you should be knowing SQL. It's very simple. तो ये चीज होती है. So now what is JavaScript was a question. Okay. So JavaScript is one of the part of Java full stack. It is very minute, very narrow, very small part of this complete Java full stack journey. Okay. So this is what the Java full stack. Now, if you are doing Python, many people are from Python. This will be there in the Python. These all things will not be there. Instead of that, there will be Django in the Python. Okay. Now, where is the core Java? So guys, try to understand. This is big question every fresher have. कि यार core Java क्या होता है? This is completely core Java, guys. This is completely core Java. Advanced Java is incomplete without core Java. You must know core Java very well. There is no option for it. Okay. So I think I'm able to solve your query. What is the difference between Java full stack and JavaScript? JavaScript is the smallest part of the full stack journey. Is that answer your question? The person who has asked me. Please write down counter questions on this question if you have anything extra. Anybody want to ask anything on this?
Yes. Anybody has any more questions? Okay, so 3 questions I received. One of it is good. Good questions, guys. This is one question. This is one question. This is one question. Okay. Okay. So what is Bootstrap? So first of all, Bootstrap means it comes under CSS, where you don't need to write. Guys, new questions please refrain. न्यू क्वेश्चंस के लिए मैं जब समय दूंगा तब आपको न्यू क्वेश्चंस ड्रॉप करने हैं. अभी सारे क्वेश्चंस इनवैलिड हो जाएंगे, अदरवाइज दिस ऑटोमेटेड सिस्टम. ओके, ओनली आस्क ऑन दिस इफ यू हैव. सो CSS बूटस्ट्रैप में कवर हो जाता है. ओके, एडवांस जावा में क्या होता है, जो सर्वलेट जेएसपी हम बोलते हैं ना, वही एडवांस जावा है. सर्वलेट जेएसपी बोलो, स्प्रिंग बूट बोलो, ये सारा कुछ आपको एडवांस जावा में आ जाता है. ठीक है, डेटाबेस ले सकते हो आप, JDBC ले सकते हो. तो जो भी टेक्नोलॉजीज बैकएंड की है वो एडवांस जावा में हम करते हैं. व्हाट इज डिफरेंस कोर जावा एंड एडवांस जावा? तो देखिए, ये है एडवांस जावा का ब्रैकेट. ओके, इसके अंदर कोर जावा यूज होता है. इसके अंदर कोर जावा यूज होता है. मतलब कोर जावा में कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता है, सब कुछ बनता है एडवांस जावा में. बट एडवांस जावा की हर लाइन कोर जावा होती है. मतलब सिंपल ये समझ लो कि ये अगर अपना घर का एयर कंडीशनर है, AC है, इसके अंदर जो कॉइल है ना, वो कोर जावा है. वो कोर जावा है. और ये जो AC जो बाहर से दिख रहा है ना, वो एडवांस जावा है. मतलब ये वाली जो कॉइल है आप किधर भी लगा सकते हो. ये कॉइल मेन है. कंप्रेसर जो होता है फ्रिज के अंदर समझ लो, या ये जो सबसे बड़ा जो हार्ट है वो कोर जावा है. डिफरेंट डिफरेंट एसीज में उस सर्किट को रखा जाता है. ये AC, फिर दूसरा AC, तीसरा AC अलग अलग रहेगा. वर्लपूल का अलग रहेगा, LG का अलग रहेगा AC, सैमसंग का अलग रहेगा, बट जो कोर है वो सेम होता है. सो आई थिंक अगर आपने ये सर्किट ही हटा दिया, यहाँ से ये सर्किट हटा दिया, तो एडवांस जावा कुछ भी नहीं है. एडवांस जावा इज कंप्लीटली कंप्लीटली बेस्ड अपॉन दी कोर जावा ओनली. होपफुली यू गॉट द आंसर. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज. ओके, नेक्स्ट. सो ये क्वेश्चंस हुए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, which is better to pursue masters in IT or MBA with IT? Better. Out of this, masters in IT is better. MBA means business side आप जा रहे हो, जिसका अभी उतना स्कोप नहीं है. पहले बहुत रहता था. These days, people are doing masters in IT. Okay, so better if you want to enhance yourself technically, go with the masters in IT. ठीक है, नेक्स्ट. सर कितनी कंपनीज आती है फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए? यस, बहुत सारी आती है, बट पहले वो भी आपकी रिटर्न टेस्ट ही लेती है. रिटर्न टेस्ट. ओके, बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आज की डेट में कंपनीज ऐसी इंस्टीट्यूट घूमते नहीं रहती है, क्योंकि आज की डेट में कंपनीज डिमांडिंग हो गई है. कंपनीज के हाथ में बहुत ज्यादा राइट्स आ गए हैं, क्योंकि वैसे भी हायरिंग बहुत कम कर रही है कंपनीज. तो इसका मतलब यह है कि हमें कंपनी के पीछे दौड़ना है, कंपनी इंस्टीट्यूट के पीछे नहीं दौड़ती है. सो कितनी आती है इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, बट हमें कंपनीज के पीछे दौड़ना होता है. कंपनी अभी अगर आज भी आप अगर देखोगे, सो इफ यू लुक एट, आज एक जगह पे लड़कों को भेजा है. So out of that 50% people not appeared for the interview. इसका मतलब यह है कि आप समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को कि आपको कंपनी के पीछे दौड़ना है, कंपनी आपके पीछे नहीं आने वाली है. इज दैट क्लियर? दिस आंसर टू एवरीवन है या नहीं? राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टूड द आंसर. No company want to come into the institute first. We need to drag them to the institute कि भाई मेरे लड़कों का इंटरव्यू लो. कोई कंपनी आज की डेट में पूरी दुनिया में वो डिमांडिंग हो गए, निकालने को देख रहे, लेने को नहीं देख रहा है कोई भी. फिर भी
जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है हमको कंपनियों के पीछे दौड़ दौड़ के लाना पड़ रहा है, दौड़ दौड़ के लड़कों को भेजना पड़ रहा है। सो होपफुली यू गॉट माई पॉइंट। सब लोग लिखिए, क्या आपको ये बहुत क्लियर समझ में आया क्या? श्रुति का मीन्स हमें कंपनी जाना पड़ेगा क्या? कंपनी जाना नहीं पड़ेगा, वहां पे रुकना भी पड़ेगा 10 घंटे, अगर वो रुकाते हैं तो। तकलीफ देते हैं तो तकलीफ भी सहनी पड़ेगी। बस नहीं मिलती तो 10 बसेस आपको चेंज करनी पड़ेगी। वहां पे खाना पाना पीना भी नहीं मिल सकता है। इस ड्रास्टिक कंडीशन में आपको जॉब लेना है। कंपनी किसी का सुनने को तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी एमएनसीज भी आजकल, पहले वहां जाते थे तो नाश्ता देते थे, अभी नाश्ता भी नहीं देती है, चाय भी फ्री में नहीं देती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? राइट डाउन यस इफ यू अंडरस्टूड। श्रुतिका, डिड यू गेट माय पॉइंट? कंपनी डिमांडिंग मोड में है। श्रुतिका, डिड यू गेट माय पॉइंट? नो ऑप्शन एट ऑल, कोई सुनेगा नहीं। कंपनी डिमांडिंग मोड में है, मतलब 12-20 हजार की ऑफर लेटर देती है और बाद में बोलती 12 हजार ले, तू जा, तू गया तो चलता है। गाइज मेरा स्टेटमेंट सुन रहे हो आप? मैंने क्या बोला? हेलो? ऐसा भी कर सकती, इतनी बुरी स्थिति कंपनियों की इस कंडीशन में है, ये आपको समझना पड़ेगा। गाइज आर यू ऑल गेटिंग? देखो 20 हजार देंगे बोलते और आखिरी दिन में 12 हजार हाथ में दे देते हैं, वो बोलते 8 हजार अगले महीने दूंगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अच्छी अच्छी कंपनियां, कॉग्निजेंट 11,700 हाथ में दे रही है। यू कैन जस्ट इमेजिन। विप्रो ऑफर लेटर दिए और अब तक भेजे ही नहीं है। टीसीएस जैसी कंपनी, आपको पता होगा, सबके ऑफर लेटर ऐसी ही मेल भेज दिया उन्होंने। मेरा एक वीडियो भी आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया 80 हजार ओपनिंग उन्होंने निकाली थी, अभी तक ऑफर लेटर डिस्कस नहीं हुए। एवरीबडी अंडरस्टूड फर्स्ट दिस थिंग। पहले माइंड को क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? हेलो? सब लोग बहुत अच्छे, क्योंकि गाइज यू आर हियर टू फ्रेश योर माइंड। गणेश, आप पिछली बार भी यही यही क्वेश्चन पूछते हो क्या हमेशा? लेट अदर आस्क ना प्लीज। सर नॉन टेक्निकल जॉब करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं मिल रहा तो करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी है ही नहीं, तुम पास ही नहीं हो रहे हो, वो तुमको साधा प्रश्न पूछ रहे हैं और तुम्हें आंसर ही देते नहीं आ रहा है, तो भाई जो मिले वो कर लेना जीवन में, क्योंकि हर किसी को कमाने की जरूरत है। आपको लॉजिक सिंपल पूछा जा रहा है प्राइम नंबर का, और अगर आप नहीं लिख पा रहे हो पाइथन में या तो जावा में, तो आपको इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, पर इसके लिए भी दिमाग लगेगा। हेलो? सबको समझा? नॉन टेक्निकल के लिए भी बुद्धि लगेगी, इट्स नॉट सिंपल। अगर आप नॉन टेक्निकल में 8-10-12 हजार का जॉब ढूंढोगे तो इजी रहेगा, ओके। बट इसमें भी अगर आप 15 हजार एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इसमें भी दिमाग लगेगा, अच्छा कम्युनिकेशन लगेगा। अदरवाइज वही मराठी हिंदी वाले कॉल सेंटर में काम करना पड़ेगा। हेलो? सबको पहले क्लियर? गणेश आपको क्लियर हो गया ना? एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट? इट इज नॉट इजी। नॉन टेक्निकल को ऐसे मजाक मत समझिए। मैं खुद नॉन टेक्निकल की हायरिंग करता हूँ मेरे इंस्टीट्यूट के लिए, ऑपरेशन के लिए। अरे नहीं नहीं, सिंपल नहीं है। हम उसको वहां से भी लोगों को हमको हटाना पड़ता है। इफ दे आर नॉट एबल टू टॉक, इफ दे आर नॉट एबल टू वॉक, इफ दे आर नॉट एबल टू wear the things which are required for the organization, we have to remove them. Okay, so I think Shruti, your question is answered here. Hello? Don't feel otherwise. It is just a fact that I'm opening in front of you, and it is a fact. Industry is accepting that. Okay, so don't put that into your mind. यार ऐसे कैसे, ऐसी है सर। हाउ टू स्टडी फॉर द प्लेसमेंट? सर हाउ टू स्टडी फॉर द प्लेसमेंट? यस, प्लेसमेंट के लिए आपको स्टडी बहुत ज्यादा, सबसे पहले से नो टू सम ऑफ द टॉपिक्स। ये मैं हमेशा बताता हूं, प्लीज इसको बुरा मत मानिए। बुरा मान के आप अपना नुकसान कर लोगे। आपको अगर कोई टॉपिक जम नहीं रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसके पीछे मत भागिए। दूसरे टॉपिक को आप परफेक्ट कीजिए, दूसरे टॉपिक्स को आप परफेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पहला ये। दूसरा, यू मस्ट प्रिपेयर रिवीजन कंटेंट। रिवीजन कंटेंट मतलब क्या है कि आप जब पढ़ाई करते हो तो रिवीजन के लिए थोड़े से नोट्स बनाओ। 2 दिन बाद इंटरव्यू, तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, ओके। 2 दिन बाद अगर इंटरव्यू है तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। तो रिवीजन के लिए 2 से 4 पेजेस में ही कोर जावा आ जाना चाहिए, एटलीस्ट 10 पेजेस, उतना ही पढ़ना है।
प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इंटरव्यू के दिन भी आप लोग वही कर रहे हो जो डेली यूसेज में, डेली पढ़ाई में आप करते हो. सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू मेक कंटेंट फॉर फॉर सिंपल रिवीजन. मतलब अभी से आप सोच लीजिए कि यार ये रिवीजन के लिए मेरे को पॉइंट काम में आएगा. प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप रिवीजन और ये इसको सबको एक ही इसमें लेके चल रहे हो गाइस. उससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप भी नहीं समझ पा रहे हो, कोई भी नहीं, वो मतलब सब कचरा कचरा हो रहा है. ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि हर बंदा इस चीज को समझे. बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ गाइस, प्लीज डू दैट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? रिवीजन कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिवीजन कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी सब लोग बताइए आप में से, राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स, कितने लोग रिवीजन का कंटेंट अपना क्रिएट कर रहे हैं? जस्ट राइट. कितने लोग कर रहे हैं गाइस कि हाँ भाई मेरे को रिवीजन के समय ये जरूरत पड़ेगी तो अभी से मैं उसका कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दूं? हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग दैट? आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मेरा भी क्वेश्चन पूछने का हक है. लेट मी आस्क, हाउ मेनी ऑफ यू? गुड वैभव, पारितोष, रोहन. अब जो लोग कंटेंट नहीं बना रहे, आप केवल टीवी वेब सीरीज देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, मत करो ऐसा. रिवीजन के लिए अभी से, जैसा कि इनहेरिटेंस टॉपिक है, तो रिवीजन के लिए एक पेज में इनहेरिटेंस आ जाना चाहिए. ओके, हाँ, मेकिंग समरी, यस, गुड. बाकी लोग जो नहीं कर रहे हैं उस पर फोकस करें. दूसरी कोई भी चीज मत सोचिए. ठीक है, बहुत क्लियर है. और गाइज आप अननेसरी इंडस्ट्री के साथ सब लोग बहुत कान खोल के सुन लो एक चीज, आप इंडस्ट्री के साथ स्ट्रगल मत करो. ये लाइफ का पार्ट एंड पार्सल समझो. आप क्या कर रहे हो, विप्रो जैसे बंदे के साथ झगड़ा कर रहे हो, तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है. इन्फोसिस जैसे वाले को आप कुछ भी बोल दे रहे हो, ये पागल है, ऐसे है वैसे है, ऑफर नहीं भेजते हो. आप उनके नाद में नहीं पड़िए. सब लोगों को मैं एक चीज बहुत बेसिक बताया. आप फालतू में वो टीसीएस वाले को ब्लेम करना, एचसीएल वाले को ब्लेम करना, कंपनियों को ब्लेम करना, ये फालतू चीजें बंद कर दीजिए. कंपनी किसी की नहीं होती, किसी की नहीं सुनती, वो इकोनॉमिकल कंडीशन पे चलती है. कंपनी टैलेंट पे चलती है. कंपनी को रिवेन्यू चाहिए, कंपनी को बिजनेस चाहिए होता है. आप मुझे बताइए, गूगल से सब लोग, सब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए. गूगल से 22,000 लोगों को निकाल दिया. बताइए गुड न्यूज है और बैड न्यूज है? सिंपल इतना बता दो. कैसी न्यूज है? नंबर 1 गुड न्यूज और नंबर 2 बैड न्यूज. बताइए तो क्या है? लिखिए, 100 लोग है. आई वॉन्ट आंसर. कोई मतलब का नहीं अदरवाइज आपका. इस सेशन को करके कोई मतलब नहीं. यहाँ पे सेल्फिश लोग नहीं चाहिए. हाँ, अपना ही सोचे जा रहे दुनिया का. आजकल अपने सोचने वालों की बहुत वाट लगी हुई है. हाँ, लिखिए बैड और गुड. 100 लोग है अभी अटेंड कर रहे हैं. या अपना सेल्फिशनेस मत लगाओ कि नहीं मैं तो ऐसे आया टाइम पास के लिए, 2 मिनट के लिए, चले जाओ यहाँ से, कोई मतलब नहीं. बहुत है ऐसे भतेरे मिल जाते हैं हमको भी आने वाले. मे बी दिस इज रीजन. और कुछ? हाँ, लिखो. को ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, चले जाओ. लिखते नहीं आता तो भी तुम काम के नहीं हो कंपनियों के आजकल. अब सुनिए अच्छे से, चले जाओ. जो लोग अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ तो आते हैं, खेत वेत में बैठे हुए हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे, कोई मतलब का नहीं तुम्हारा. तुम पढ़ लो वही बहुत है. ओके, अब सुनिए अच्छे से, कंसंट्रेशन करना है. ठीक है, हो गया समय समाप्त हो गया लिखने का, इसके बाद नहीं मिलता चांस. हाँ, अब देखिए, गूगल में लोगों को निकाला, ये हमारे जैसे नाराज हो गए पहले तो, जो सिर्फ न्यूज सुनते हैं, हमको बुरा लगा. बट जो गूगल में पैसे लगाए हुए हैं, जैसे मैंने गूगल के 2 शेयर्स लिए,
शेयर्स होते हैं, ओके, 2 शेयर्स। तो जिसने शेयर लिए ना वो बहुत खुश हो गया, वाओ कंपनी का पैसा बच गया, और ये पैसा मुझे प्रॉफिट की मीडियम से माध्यम से मेरे पास आएगा। अगर मेरा शेयर 200 रुपए का था तो लोग निकालते ही वो, मैं बता रहा हूँ एक्चुअल, 210 रुपए का हो गया, तो भाई मेरे लिए तो फायदा हो गया। यहाँ पे जो लोग हैं वो खुद का सोचते हैं, जैसे आप खुद का सोचते हो वैसे कंपनी भी खुद का सोचती है। कंपनी कोई राहुल गांधी वाली सिस्टम नहीं है कि सब लोगों को सेम पैसा बांट दो ना। नो, नो मीन्स नो, सबके लिए सब्सिडी लगा दो, नो, वो चीज नहीं है। ओके, तो इसलिए राहुल गांधी जी बहुत रिस्पेक्टेड लीडर्स है, मैं जस्ट उनका एक स्टेटमेंट बोला कि सबको बांट देते 5-5 हजार ना, कंपनी नहीं बोलती। इसीलिए ये बैड न्यूज बहुत कम लोगों के लिए है, पर जनता बहुत है इसलिए ज्यादा लगता है, पर बाकी सबके लिए गुड न्यूज है क्योंकि उनके शेयर्स बढ़ गए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो इसीलिए हम इस चीज में डील नहीं करना है। आप कंपनियों को गाली देना बंद कर दे, पहले तो अपना एटीट्यूड सुधार लो कि कंपनियां बेकार है, कुछ नहीं, अपन अच्छे हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके सर, हाउ टू स्टडी फॉर प्लेसमेंट, प्लीज ये 2 चीजें आप कर लीजिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके ऊपर कि ये क्या करे वो क्या करे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सो जिन्होंने पूछा था, आई होप यू गॉट द आंसर। रिवीजन का कंटेंट बनाना चालू कर दीजिए। नेक्स्ट, सर विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेटर टू स्टडी, कोई भी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, ऑल आर बेटर, ऑल आर बेटर, ऑल आर बेटर। नो वे कि कोई लैंग्वेज खराब है, सारी लैंग्वेजेस अच्छी ही है। एनी लैंग्वेज इज अ गुड थिंग, दैट्स इट। डॉट नेट भी कर लीजिए, जावा कर लीजिए, पाइथन कर लीजिए, कुछ ही कर लो आप, सब में प्रोडक्ट बनते हैं। बट अगर फिर भी किसी को लगता है कि यार कंफ्यूजन ही हो रहा है किसमें मैं जाऊं, तो एक छोटी सी चीज आपको दिखाऊंगा, उस पे जाइए, यहाँ लिखिए naukri.com, ओके, और सब लोगों को आज यहाँ पे डालना है जावा, यहाँ डालना है जावा, और यहाँ डालना है फ्रेशर, सिंपल इतना, और सर्च। यहाँ कितने आए देख लो, जावा जॉब है ना, 7,028। फिर से इसको करना है, फिर यहाँ लिखना है पाइथन, ओके, फिर से यहाँ फ्रेशर करना है और सर्च करना है, फिर यहाँ देखना है 7,600, ओके। सो पाइथन की इतने जॉब आए, naukri.com तो किसी के घर का है ही नहीं, है ना, तो पार्शलिटी नहीं करेगा ना वो। तो जावा के कितने जॉब्स मिले थे गाइस, 7,680 आई थिंक, मोटा मोटा। ये कितने हैं, ये वाले हैं, है ना, ये 800 कुछ थे आई थिंक, जो भी है सेम है। हाँ, फिर किसी को लगता है सर मैं डेटा साइंस करूंगा जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको naukri.com पे जाना है और यहाँ लिखना है डेटा साइंस और यहाँ लिखना है फ्रेशर, एंड देन चेक इट। हाँ, 235 जाओ, वाह वेरी गुड। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखना है और वहां से डेटा ले लेना है, ये ले लो जी, हो गया। अब तुम्हारे मन में जो जो आता है वो बोलते जाइए, कौन सा लिखूं अब, है ना, मॉन स्टैक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मन स्टैक नहीं लिखेंगे, मन लिखेंगे, मतलब मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जॉब आए, अननेसरी अपन बहुत बड़ा फिल्टर नहीं बनाएंगे, है ना। हाँ, 89 मन मीन होता है ना। सो आई एम नॉट सेइंग समथिंग बैड और गुड, आप मार्केट को समझिए खुद, कहाँ जाना है क्या करना है। फिर क्या लिखूं यहाँ पे, डॉट नेट, डॉट नेट ऐसा गलत लिखा होगा हमने, एक मिनट। ये देखो डॉट नेट इनका पकड़ते हैं ना, है ना, फ्रेशर 457। अब गाइस आपके आगे है, अब बेटर वेटर कुछ नहीं होता है। अब समझे क्या, थोड़ा सा एनालिसिस, naukri.com तो गाइस झूठ नहीं बोलेगा ना, आपके आगे है, आप अपने हिसाब से सर्च कीजिए। और अभी देखो मस्त है, ये बेकार नहीं है, इसमें बहुत सारे जॉब्स है, पर कैसा बढ़िया क्रीम है और इजी टू लर्न है, तो ये भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमको ना रेयर वाली चीजें करके खुद को खराब नहीं करना है। तो आई थिंक आई गेव यू आंसर, लाइक कि
व्हाट इज गुड, कहाँ ढूंढना चाहिए, अपने को कैसा अंदाज लेना है, अपन कितना पढ़ाई करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड है. सो गाइज, एवरीबडी गॉट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन? एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? राइट डाउन ऑन चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टूड. Naukri.com का मेरा एग्जाम्पल आपको समझ आया? बहुत ही सिंपल है. मतलब आप ना, प्रॉब्लम कहाँ पे है ना, ज्ञानबाजी में है. इसको ज्ञान पूछोगे, उसको ज्ञान पूछोगे, फालतू का सजेशन. तेरे को कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है, वो भी बेवकूफ. हम भी बेसिक वाले लोग हैं, हम भी बिगिनर हैं. अब आगे वाला भी होशियारी से ज्ञान देके चले जाता है, इसका बहुत स्कोप है. भाई यहाँ से करवे नगर है, समझ लो, ये करवे नगर से एरोडा जाते जाते उसको पता चल जाता है कि क्या स्कोप है, कुछ नहीं. ठीक है, सो दैट इज नथिंग. ओके. सो गाइस, प्लीज आप फैक्ट्स पे ध्यान देंगे, उल्टा सीधा नहीं करना. सर, हम कितने महीने के बाद इलिजिबल हो जाते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. इधर ही कवर कर लेता हूं. सिंपल क्वेश्चन ये है, कितने महीने बाद. तो आंसर इज आफ्टर कोर्स कंप्लीशन. ओके, बट अगर आप हैकाथॉन को क्रैक करते हो, या जो कैंपस ड्राइव होती है, नंबर वन, क्या बोला मैंने, हैकाथॉन को क्लियर करते हो, मतलब सेकंड राउंड तक पहुंचते हो, या तो जो यहाँ पे कैंपस ड्राइव होती है उसकी शॉर्टलिस्टिंग में आप आते हो, या तो फैकल्टी रिकमेंडेशन, आपके फैकल्टी आपको खुद से हमको ईमेल करते हैं, ये लड़के को देना चालू कर दो, इसको जरूरत नहीं इतना पढ़ने की, ये खुद ही पढ़ लेता है एडवांस जावा वगैरह, देन वी कैन गिव अ कॉल्स. ओके. बाकी सब के लिए तो बाय डिफॉल्ट आफ्टर कोर्स ही है, और वही होना चाहिए. बट ये लोग स्पेशल होते हैं. अब हैकेथॉन क्रैक करना छोटी बात तो नहीं है ना. कैंपस ड्राइव में लास्ट राउंड तक जाना छोटी बात नहीं है ना. फैकल्टी रिकमेंडेशन अगर कर रहा है, मतलब कुछ तो सोच के ही किया होगा, है ना गाइस. तो ये चीज होती है. क्या ये सबको क्लियर है? एवरीवन अंडरस्टूड? तेजेश्वर सिंह, प्लीज ये पॉइंट्स यहाँ नहीं करना है हमको. ओके, आई एम नॉट हियर टू सॉल्व दोस थिंग्स. ओके, कोई किसी को कुछ नहीं बता रहा है. इट विल गेट सॉल्व. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ, आई एम जस्ट गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू आस्क करियर रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ इट इन अ गुड सेंस. गाइस, सबको समझा ये कैसे कॉल्स और क्या है, सिंपल. ठीक है. देन बाकी चीज आप अपने काउंसलर से क्लियर कर लीजिएगा. ये वाला भी उससे रिलेटेड है, ये ड्यूरेशन वाला कोर्स, इसलिए इसको लेता हूं. सुनिए अभी. सर, कोर्स ज्वाइनिंग के 3 महीने बाद हमको कॉल क्यों नहीं मिलते? यस, क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आपके जैसे ही सारे लोग नहीं होते हैं, जिनका 2-2 महीने तो कोर जावा ही करते रहते. कुछ लोग बैचेस चेंजेस करते रहते हैं. तो इंटरव्यू में जाने के बाद वहां पे हमको इंस्टीट्यूट को ब्लैकलिस्ट कर देती है कंपनी. ब्लैकलिस्ट, अगर आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा और हमने भेज दिया, और पूछा कि स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में डिफरेंस क्या है, और जैंगो क्यों यूज होता है, और आप नहीं आंसर दे पाते हो, तो वो हमको बोलते हैं कि भाई क्यों भेजा, जब ये इसको जानकारी नहीं है इस कोर्स की. हेलो, सबको ये क्लियर हुआ? सो टू प्रिवेंट दैट, हम अच्छी इमेज रखना चाहते कंपनीज के आगे, इसलिए ये नहीं भेजते हैं. इसलिए कोर्स कंप्लीट होने का हम वेट करते हैं. डिड यू गेट? आपको लगता है क्या कि इंस्टीट्यूट को आप, मैंने क्या बोला, अपना ही नहीं सोचना है ना. आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हो तो इंस्टीट्यूट भी तो आपके लिए अच्छा सोच रहा है. पंगा क्या हो जाता है, आपके नाद में कंपनी इंस्टीट्यूट को. अभी देखो, आप गए 3 महीने बाद, बोले यार व्हाट इज एंगुलर, व्हाट्स द यूज ऑफ एंगुलर इन पाइथन. अब आ गया पंगा. ये भाई चुप, आई डोंट नो एंगुलर. अब गया तो था मुंह खोल के वहां पे, बट दिक्कत क्या हो गई बताओ? इंस्टीट्यूट को बैन कर दिया. एचआर का कॉल आया, बहुत झापा एचआर ने. अब बताइए गाइस, आपको क्या लगता है? यू राइट समथिंग ऑन दिस, प्लीज गो अहेड. ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आंसर मिला. दे ब्लैक लिस्ट, कोई भाव नहीं देता आज के जमाने में. हेड होल्ड. श्रुति का, आई थिंक आपका क्वेश्चन था, समझ में आया कि ये बहुत बेसिक. श्रुति का नहीं, somebody has answered this question.
ask this question. Okay, बैन कर देते। मतलब मैं क्या बताऊं अभी आप लोगों को, इतनी बेकार स्थिति है मार्केट में कि ऐसे बेकार लोगों को भेजा ना तो बैन। गाइस इंस्टीट्यूट्स को बैन करते, बोलते नेक्स्ट टाइम भेजना ही मत तू लड़के, ऐसे फालतू वाला काम मत कर, हमारा समय क्यों खराब कर रहा है, बोलता है। तेरे जैसे बहुत लड़के। सुदर्शन बताता हूँ, नाउ अंडरस्टूड। यस सुदर्शन, अरे आप मुझे बताइए, सब लोग सोचिए। यस सुदर्शन, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। सुदर्शन, आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप इंस्टीट्यूट से लड़के मंगाए और लड़के बोल ही नहीं पाए, तो आप नेक्स्ट टाइम उस इंस्टीट्यूट से लड़के लेंगे क्या? सब लोग मुझे आंसर देने का ट्राई कीजिए इसका, तो सब लोग ट्राई करो। आपने बोला कि मेरे पास आओ इंटरव्यू देने, और कोई लड़के बोल नहीं पाया, तो नेक्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट को लड़के भेजने देगी क्या कंपनी? हर बंदा ट्राई करो इसको समझने का। गाइस आप लोगों को मैं वही बोल रहा हूं कि अभी आप बच्चे नहीं हैं, आप लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो और आपको प्रोफेशनल होना एक्सपेक्टेड है। इसलिए सब लोग, अभी कोई भी ये सब चीजों का ब्लेम कंपनी को करना, इसको करना, इंस्टीट्यूट को करना, इसको उससे ऊपर उठ जाइए। लास्ट में क्या होता है ना, जो लोग ब्लेम करते हैं उनका वैलिडिटी खत्म हो जाता है, और इधर के भी नहीं और उधर के भी नहीं होते हैं। इसलिए ओनली फोकस ऑन द स्टडी। ये देखो एक लड़के ने लिखा, देखो क्या लिखा है, ओनली फोकस ऑन, चैट बॉक्स देखिए क्या लिखा है, ओनली फोकस ऑन स्टडी। आप दूसरा कुछ ना करें, लोग आपके पीछे दौड़ेंगे आपको लेने के लिए, ठीक है? सो प्लीज गाइस, डोंट फोकस एनीथिंग एल्स। ओके, एक क्वेश्चन मुझे बीच में लेता हूँ क्योंकि किसी ने पूछा है कि सर हमको बैठने के लिए जगह नहीं है, देयर वाज वन क्वेश्चन, सो आई हैव टू आंसर फॉर दैट। किसी ने पूछा है, हाँ। यस, सो सब लोग इस पे ध्यान दो। अभी क्या है ना, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जरा से दिनों के लिए कुछ प्रॉब्लम हुई है। क्या हो रहा है ना, जो हमारा बड़ा हॉल था उसके बाजू में पोकलैंड और जेसीबी से कुछ तो खुदाई चल रही है, जो 5 से 6 दिन और 10 दिन चलेगी। उसकी वजह से हम आपको कंजेस्टेड लग रहा है, एंड वी विल डेफिनेटली लुकिंग इनटू इट। आप में से जो 1187 वाले लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग 6 PM पे सेम सर की बैच चल रही है उसमें भी शिफ्ट कर रहे हैं अभी हम। तो आप जरूर 3 से 4 दिन के अंदर चेंजेस जरूर देखेंगे। बट वी आर मेकिंग श्योर कि एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी डज अ प्रैक्टिकल। ओके, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक दैट थिंग्स अप। ओके, सो अभी के लिए जस्ट एक 5 दिन पर हम वहां पे पूरी फोर्स लगा रहे हैं, पूरे फैकल्टीज को। इस मंडे को आपको और भी दिखेंगे, बहुत सारे फैकल्टीज उसमें आएंगे, ताकि आपका जो प्रैक्टिकल है वो कहीं पे भी इम्पैक्ट ना हो। ओके, सो अनदर बैच इज ओपन, दैट इज एट द 6 PM, which is empty now, so we are shifting there many people, so you will feel relaxed. Don't worry about it. Okay, so we are working on it and definitely you will get positive response. अभी कैसे 4-5 दिन ही हुए हैं, we are definitely, because बहुत सारे लड़के क्या है, बैच शिफ्ट करते रहते हैं, उनको काम ही नहीं दूसरा, तो उसके कारण एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। दैट इज मे बी, दैट इज नॉट योर इशू, दैट इज आवर इशू। सिर्फ शिफ्टिंग 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 वाले लोगों को भी हम वहां से रिड्यूस कर रहे हैं, जस्ट टू टेल यू द अपडेट्स। गाइस जो लोग 1187 वाले हैं, यू गॉट माय आंसर, हेलो, आई एम डेफिनेटली वर्किंग ऑन दैट, आई विल आल्सो कम देयर फॉर हेल्पिंग यू आउट फॉर द प्रैक्टिकल्स। गाइस पहले ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था, आई मस्ट आंसर दिस एंड आई हैव आंसर्ड। हेलो, ओके, yeah, and definitely I assure everybody's practical should be done, क्योंकि practical is most important। मैं सबसे बड़ा आपको एग्जांपल जो हमेशा दे रहा हूँ, गाइस विदाउट प्रैक्टिकल, मैं सही में बोल रहा हूँ, विदाउट प्रैक्टिकल, मैं मेरे जैसा आदमी जो डायरेक्ट अपफ्रंट बोलता है, आप लोग हमेशा, एक लड़का है जो बास्केटबॉल रोज खेलता है और एक बास्केटबॉल की कहानियां रोज सुनता है,
बास्केटबॉल प्रैक्टिकल रोज खेलता है वो, प्ले, एंड दिस पर्सन रीड्स प्रैक्टिकल डेली। किसका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा, आपके पास आंसर मिल गया होगा। हेलो बताइए, ये 1 और 2 किसका आंसर, किसका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू में। तो जो भी है, मैं आपके साथ हूँ। मंडे से भी आपको चेंजेस मिलेंगे बहुत जल्दी। वी आर एक्टिंग ऑन इट लाइक एनीथिंग, वी डोंट वांट थिंग्स टू हैपन इन दैट वे। तो सुनिए, दूसरी चीज, सब लोग सुनो, जो लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हेलो, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात बोलता हूँ। आप मुझे बताइए, बास्केटबॉल का जो मैदान होता है ऐसा होता है ना, पर मुझे बताइए मैदान की लेंथ और विड्थ एक प्लेयर को बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा खेलने से ज्यादा भी जरूरी है क्या? नहीं है। पर ये जो रीडिंग वाला है ना, वो मैदान की साइज एंड शेप ही लेते बैठेगा, वो भी रट लेगा। गेम में प्लेयर इंजर्ड होने के बाद क्या करना चाहिए, इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या बोलेगा, मैं थोड़ी इंजर्ड हुआ भाई, मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को परफॉर्मेंस देना है, ये बंदा बोलेगा। पर ये क्या करेगा बताओ, हेलो, इंजर्ड की कहानी भी पूरी पढ़ लेगा। इसको पता ही नहीं क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, फालतू फालतू चीजों पे ध्यान देने लगेगा। इसलिए सब लोगों को ये एग्जांपल बताना जरूरी था कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, सो 1187 आई आंसर्ड योर क्वेश्चन एंड आई एम विथ यू। मैंने बीच में लिया क्योंकि आप अगर ड्रॉप हो जाते हो तो आपको ये अपडेट रहना चाहिए। सर बीच प्रोग्रामिंग ये डन हो गया, उसके बाद ये तो ले लिया। सर हाउ टू एक्सप्लेन जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस। सब लोग जावा बोलो या पाइथन, कोई भी रहेगा, मैं इसका बहुत अच्छे से आंसर दे रहा हूं, सब लोग सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्वेश्चंस मत लिखिए, इसके बाद मैं आपको अभी समय देने वाला दूसरे क्वेश्चन लिखने के लिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर सुनो, वार्म अप स्टेटमेंट होना चाहिए। वार्म अप स्टेटमेंट मीन्स व्हाट, किसी भी लैंग्वेज में ले लीजिए। व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, अगर पूछा तो एनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द ऊप्स कंसेप्ट इन जावा। हेलो, सबको क्लियर हुआ ये वार्म अप स्टेटमेंट? क्या बोला बेन, देखो, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऊप्स कंसेप्ट इन जावा। ये पहला स्टेटमेंट से आपका जो ये है, सांस लेते हो आप, बड़ी बड़ी जोर से आवाज निकल जाता है स्टार्ट में, ये थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, बड़ा सा आवाज निकल जाता है तो थोड़ा सा अपन लाइन लेंथ में आ जाते हैं गाइस इसके बाद। ओके, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऊप्स कंसेप्ट इन जावा, ये पहले बोलो। नेक्स्ट हमको क्या करना है, उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या करना है हमको, उसकी डेफिनेशन बोलना है। definition like encapsulation means it's a binding of data into a single entity। बहुत सिंपल, सॉरी, सिंगल इंटिटी, इतना सिंपल है। थर्ड, फिर बताना है हाउ टू इंप्लीमेंट, आ गया, हाउ टू इंप्लीमेंट बाय मेकिंग ग्लोबल वेरिएबल्स प्राइवेट एंड adding getters and setters into a class। देख लीजिएगा इस क्या लिखा है मैंने, बहुत सिंपल बोला मैंने, है ना। ये देखिए, उसके बाद क्या बताना है भाई, उसके बाद बताता हूं, देखो उसके बाद क्या बताना है, सुनो। वेयर यू हैव सीन दैट इन पाइथन और जावा, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, है ना, इनकैप्सुलेशन happens in every class which we build, which we build। ऑब्वियसली हर जगह पे होता है, बाइंडिंग तो होती है ना, है ना, एंड इट इज रिकमेंडेड टू हैव प्राइवेट global variables so that no one can add invalid values into it, है ना। हाउ टू इम्प्लीमेंट, दूसरा और एक चीज, यहाँ पे और एक चीज ऐड करता हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू इम्प्लीमेंट वाई, वाई, तो वाई में आप ये वाली लाइन जोड़ सकते हो।
एवरीबडी प्लीज रीड दिस गाइस। पहला तो वार्म अप स्टेटमेंट आपको बोलना है, मैं एनकैप्सुलेशन का आंसर दिया। डेफिनेशन बोलनी है, बाइंडिंग ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल एंटिटी। फिर आपको व्हाई बोलना है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू डाल सकते लोग, है ना। सो ना डाले, इसलिए ये चीज करनी है। देन हाउ टू इम्प्लीमेंट आता है, ये हो गया जी। फिर वेयर यू हैव सीन दैट इन जावा, ये हो गया। गाइज एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर प्लीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई टुक इट अप। पहला वार्म अप स्टेटमेंट ही करना है। फिर डेफिनेशन पढ़ लीजिए अच्छे से। पाइथन वाले भी यही करना है, जावा वालों को भी यही करना है, मॉन मीन सबको यही करना है। फोटो ले लो लगे तो इसका। ये आपके आंसर का अगर स्ट्रक्चर होता है तो आप इसमें कम, अगेन मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वही पत्थर की लकीर है क्या, आंसर इज नो। वही है नहीं है, बट इट इज गुड टू हैव। इससे आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना कुछ। एनीबडी वांट टू ऐड एनीथिंग हियर, ये एनकैप्सुलेशन का क्वेश्चन। एवरीबडी सर, इफ दे आस्क व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, यस 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 यस, मुस्कान यस, आपको देना चाहिए। ये स्ट्रक्चर रखो आप, ये हर जगह काम में आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस स्ट्रक्चर, यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, है ना, देख लो। यस, देना है इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो, बट कैसा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। मुस्कान, यू गॉट माई पॉइंट। बाकी लोगों को ये समझा कि नहीं, हेलो एक बार फिर से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट टेक दिस थिंग लाइटली। वो छोड़ो, फालतू क्वेश्चंस थे वो। ये कब होगा, कितना पैकेज मिलेगा ना, क्या मिलेगा, वो सब भगवान को जो पता थे, वो आप मुझसे क्वेश्चंस के आंसर निकाल रहे थे। भगवान भरोसे थे वो। सर मेरा क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा, वो सब भगवान का है, ये है आपके हाथ में, इसको आपको नहीं भूलना है। ओके, समझे। अब देखिए गाइस, आज ही एक इंटरव्यू था, यहाँ देखो, अभी सब लोग मेरा मेल बॉक्स देख पा रहे हैं। हेलो 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 हेलो, एवरीबडी इज एबल टू सी माई मेल बॉक्स? राइट डाउन ऑन चैट बॉक्स इफ यू आर एबल टू सी। हेलो, हाँ। सुनो, अभी क्या है ये वाला मेल पढ़ो तो। गाइस क्या है, आज ही देखो, आज 11 बजे इंटरव्यू है, और लड़के क्या भेज रहे, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो तो सब लोग, मोटा मोटा क्या है। अब इसमें हमारी बेइज्जती हो गई, एचआर हमको नेक्स्ट टाइम अलाउ नहीं करेगा, ये बोलेगा, हेड बोलेगा तुम्हारे लड़के आते नहीं, कुछ ना कुछ इमरजेंसी। ये पढ़ो क्या है, पढ़ो कैसे मेल लिखे है, देखो सब लोग, एवरीवन। हम प्लेसमेंट से आपको बैन कर देते हैं अगर ऐसा आपने 2 बार किया तो। हेलो, ये सबको इंस्ट्रक्शन सुनाई दी? एवरीवन गेटिंग में दिस पॉइंट? अगर आप 2 बार ऐसा करते हो, या तो आप पहले ही बोल दो कि मैं जाऊंगा नहीं, अप्लाई मत करो, अप्लाई ही नहीं करना है। और अगर आपने अप्लाई कर दिया और अगर आप नहीं जा रहे, देन पढ़ो सब लोग, ये देखो है क्या है रीजन। हेलो, बाकी लोग सुन लो, पढ़ो, लिखो यस 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 यस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो आपके हाथ में। फालतू चीजों में ध्यान मत दो, कितना पैकेज मिलेगा वो नेक्स्ट स्टेप है, पहले यही देख लो। बुरा मत मानो, पर यही है, ये देखो कल रात को, ये देखो है है कि नहीं है, देखो। आई एम नॉट एबल टू गिव, आई एम नॉट, इसे बहुत देर रात, ये देखो, ये देखो, ये क्या है मतलब कितने लड़कों को भेजा ये ट्रान में, और सब ने हमारी खिचड़ी कर दी, देख रहे हो। तो इसलिए हमने भी एक्शन लिया, फिर हमने भी उनको बोल दिया कि नहीं भाई, ऐसे नहीं चलता है, समझा। हमने बोल दिया कि नहीं 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 नहीं, तुम ऐसे करोगे 2 से ऊपर तो तुमको बैन कर दिया जाएगा, तो अभी बैन कर दिया जाता है आपको प्लेसमेंट से। सबको ये रूल समझ में आया, क्या रूल है?
दो बार से ज्यादा अगर आपने फैमिली इमरजेंसी दो बार मान लिया, हमने मेडिकल इमरजेंसी दो बार माने, पर दो काउंट अगर हो गए और आप नहीं गए अप्लाई करने के बाद, देन यू गेट बैंड फ्रॉम द प्लेसमेंट डिपार्टमेंट। हेलो, एवरीबॉडी इज गेटिंग? सोल्यूशन है, फिर से पेमेंट करो फिर, क्योंकि आपकी गलती है, वहां पे हमारी बेइज्जती हुई है। फोन भी करते आपको, 2 दिन पहले भी फोन करते, पहले दिन भी करते, एक दिन भी करते। समझ जाओ इस चीज को। कंपनियां अभी भाव नहीं देती है, ऐसे तुम्हारे जैसे बहुत मिलते हैं, ऐसा हमको बोलते हैं, तो आपको सोचो कितना बेकार बोलते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एब्सोल्युटली नो। सब लोग इस क्वेश्चन को भी जान लो। नो। क्योंकि गाइस पहले ही कंपनी लाना और उसमें इंटरव्यू कराना, उस एचआर को पटाना, ये बहुत तामझाम है। हेलो, सबको दिख रहा है? हेलो। बहुत डिफिकल्ट है गाइस कंपनी ढूंढना। अपने इंटरव्यू, अपने इंस्टीट्यूट की इतने कॉल कोई भी नहीं दे सकता है। इतने कॉल, इतने कॉल, मेरा टारगेट होता है उनको। इतने सारे लोग हैं और इतने सारी ओपनिंग्स पर, अगर आपने अप्लाई किया और हो गया, वैलिडिटी में करना है। और देखिए ये आपके लिए है गाइस, आपके लिए है। स्टार्ट में आपको करना पड़ेगा किधर भी। कुछ लड़के क्या करते हैं कि कॉल बहुत मिलते हैं तो छोड़ना, ये कंपनी वो, इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे क्योंकि छोड़ना बाद में और आएगा ही नहीं। कितने ड्यूरेशन? इट इज 1 year वैलिडिटी, विद इन दैट यू नीड टू डू। ज्योति है ना, पूरे कोर्स का 1 year होता है। यस गणेश। पर गणेश अब मैं इसके ऊपर नहीं कमेंट करूंगा, वो ऐसा हो जाएगा कि आपने तो इंस्टीट्यूट के लगा रखा ही कोई भी। समझे क्या? अरे दूसरी जगह सुनिए क्या होता है, ऐसे मैं बता देता हूँ अभी। जॉब ऐसा पोस्ट कर देते हैं, ये सबको सुनाई दिया है, जॉब हेलो मेल पे आ जाता है। उसके बाद भाई तू कर मत कर अप्लाई, कुछ ही कर, हमको कोई लेने नहीं। अपने इंस्टीट्यूट में आज 147 लोग कहीं पे भेजे हुए वॉक इन है। सबको कॉल किए गए कि तू कहाँ पे, रास्ते पे पहुंचा क्या, गया क्या, आया क्या? और उसमें से कुछ नगीने हैं अराउंड 50, वो बोल रहे हम नहीं जाएंगे। अब मतलब आप समझिए, एवरी बड़ी हुई कॉल, एवरी बड़ी गेटिंग। अब कुछ लोग बोलते नहीं इतने पैकेज की मैं करूंगा नहीं, ठीक है भाई, तेरे को 5 कॉल हो गए, 8 कॉल हो गए, अब तो कर लेना यार, कम सैलरी है फिर भी। गाइज आपको मेरा स्टेटमेंट समझाइए। तेरा अगर 4 इंटरव्यू में नहीं हो रहा है, 5 इंटरव्यू में नहीं हो रहा है, तो मुझे बताइए कम सैलरी एक्सेप्ट करने में कुछ जाएगा क्या? इससे वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, हाँ या ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यस गणेश। गाइज आपको सबको सुनाई दिया? अरे भाई तू नहीं हो रहा है पास, फिर हम उसको अकेले रूम में बुलाते हैं, कैबिन में, और पूछते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। फिर वो हाँ करता है, तो बोलते भाई अब तो कर ले। सबको समझा या नहीं? यस ज्योति, दैट इज करेक्ट एंड इट इज मोर देन इनफ ज्योति, ओके। यस। यस ज्योति, दैट इज करेक्ट। यस। 6 महीने बहुत है, हम कॉल दे रहे हैं आपको, आपको पास करना है, क्योंकि 6 इसलिए तो बोल रहा हूँ ना कि पढ़ते पढ़ते आपको पढ़ाई करनी है ज्योति, ओके। कहीं ना कहीं तो लिमिट होनी चाहिए, और आप कर सकते हो, मुझे पता है लोग कर रहे हैं ना, है ना। अभी मैं वो सुपर 20 की बैच में गया था। अरे आप बिलीव नहीं करोगे यार, लड़के रात को भी नहीं सो रहे, दिन को भी नहीं सो रहे। सो दैट इज हाउ इट इज गाइज, द फ्यूचर इज। सारा कोर्स होने के बाद, आज किसी को पता है कि अपने इंस्टीट्यूट में पूरे इंटरव्यू चल रहे हैं? एनीबडी अवेयर अबाउट इट? एनीबडी अवेयर अबाउट इट? आज खूब इंटरव्यूज है, यस। तो सुनो, इसमें क्या है, इसमें ये हमारा एक सुपर 20 सुपर 30 करके एक कंसेप्ट होता है। इसमें आपका सारा कोर्स होने के बाद, पूरा होने के बाद, जैसा प्लेसमेंट चल रहा है वैसे, बट जो लोग यस आज बहुत ज्यादा इंटरव्यूज हैं। तो सुनिए, आप में से जो लोग
और जो पढ़ाई करते हैं और जो रात दिन पढ़ाई करना चाहते हैं उनको हम फिर से सिलेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूट बेसिस पे, जस्ट टू गिव इट बैक। मतलब आपसे हम कमा भी रहे तो हम आपको वापस भी देना चाहते हैं। और उन लड़कों को डेली 9 आवर्स के लिए हम टास्क देते हैं, वी गिव टास्क, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कर रहे, चाय पानी सब करते हैं उसमें हम लड़कों का, समझे। और और उसके बाद आपको जो चल रहा है प्लेसमेंट वो कराते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो आपको वो ये करना है, खुद को उसके लिए प्रिपेयर करना है। यस, ओपनिंग है, मैकेनिकल ब्रांच के लिए भी है। आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन एनी लिखा होता है जॉब पोस्टिंग में, ओके, वहां पे जाके आपको अप्लाई करना है। अभिनव है, सिर्फ थोड़ा सा अभिनव कैसा है, अभी मार्केट का सिचुएशन सही में खराब है, तो हम थोड़ा सा एक्सेप्ट कर ले कि थोड़ा कम पैकेज मिला, ये मिला वो पड़ा, ठीक है ना। इफ वी रिजाइन, नो वी डोंट सपोर्ट एक्चुअली। अगर कोई जेन्युइन है, हमारी गलती से हो जाता है, तो 1-2 महीने तक हम सपोर्ट करते हैं सुदर्शन, बट ये सब चीजें नहीं। क्योंकि लड़के क्या करते हैं सुदर्शन, इसमें पता है क्या, नहीं अभी देखो उस दिन क्या हुआ मैं बताता हूं। अभी आप बुरा मत मानिएगा सब लोग। एक लड़की को उनके मैनेजर ने प्लेसमेंट किया, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा बिठाया, तो 8:30 बज गए। तो लड़की ने उनका गूगल पे रिव्यू लिख दिया, लिंक्डइन विंक्डइन पे। आप मुझे बताइए, वो कंपनी का कभी रिव्यू लिखना चाहिए क्या? 1.5 घंटा लेट करा लिया काम, तो कुछ हो गया? हेलो, सब लोग बताओ, गाइज क्या बोलते हो गाइज? आपको 1.5-2 घंटे एक्स्ट्रा करा लिए तो बहुत नुकसान हो गया कि आपका काम। रिजाइन मार दी लड़की, अभी पीछे दौड़ रही है कि हमको ये करो वो करो। भाई बोला, भाई खत्म, तुम एटीट्यूड ही इतना है तो क्या कर। गाइज एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, सब लोगों को समझा कि नहीं? आप कंपनियों से फालतू डील करो ही मत, नहीं फिर तू ऐसे करेगा, एचआर मेरे को, उनका काम ही है। नहीं, एक लड़का बोला कि सर बॉस चिल्ला चिल्ला के बात करता है, अभी मैं क्या करूं भाई उसमें? गाइज आप बताइए, मेरे कंट्रोल में है क्या? आप समझ रहे हो? आपको फायदा, यस सुदर्शन, आपको फायदा समझना है। चिल्ला के कर रहा है मतलब कुछ तो करोगे। वहां तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा की बहुत प्रॉपर्टी है, वो उनकी है। कंपनी में भाई तेरे को 10,000 दे रहा है, 10,000 का काम चाहिए, खत्म का है। क्लियर एवरीवन? आप सब लोग ये कान खोल के सुन लो, प्लीज डोंट डू सच थिंग्स, सच वेस्ट थिंग। आप कंपनी के साथ उनके ऊपर गुस्सा निकाल के क्या करोगे? तुम्हारे जैसे बहुत मिलते हैं उनको, मेरे जैसे बहुत मिलते हैं। तो गाइज वो कंपनी, वो एचआर को उल्टा सीधा बोल के आ रहे लड़के इंटरव्यू में, क्या है, समझे सर? हमारा, इफ वी डिडंट लाइक, नो देर इज नो चॉइस वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक। इफ यू अप्लाई, आप अप्लाई करते समय बहुत बार सोचिए, अप्लाई मत कीजिए। सानिया, यू गॉट द पॉइंट? हेलो, बट इफ यू अप्लाई and you have to go interview, and if you get an offer you join, but if you don't apply then it's okay, no problem. हेलो, ये समझा? देर इज नो चॉइस एट ऑल, देर इज नो चॉइस। क्योंकि आप सोचिए, इतने लड़कों को हम सर्विस और इतने ज्यादा कॉल्स दे रहे तो क्या हालत हो जाएगी इंस्टीट्यूट की। थिंक अबाउट वाइड पर्सपेक्टिव, नॉट सिंगल पर्सन, ठीक है। यस अभिनव, अगर नहीं मिल रहा है जस्ट मीट द प्लेसमेंट डिपार्टमेंट। अभिनव 3 बजे आप ज्वाइन कीजिए, जरूर आपकी केयर ली जाएगी। कुछ ना कुछ तो पंगा होगा जो आपके और उनके समझ में नहीं आ रहा है, तो सॉल्व हो जाएगा। अभिनव, यू गॉट माई पॉइंट? हेलो, ओके, जस्ट ओवर है ना यार? यस यस, तो योर क्लास इज जस्ट ओवर, यस यू विल गेट, बस थोड़ा सा, अभी जस्ट आपके फिनिश हुए हैं, अभी चालू हो जाएंगे। और मैं तो बोलूंगा थोड़ा सा अभिनव, मतलब एक इंटरव्यू दिया ना आपने, थोड़ा सा पढ़ाई करना है, रुकना है, फटाफट फटाफट 4-5 इंटरव्यू दे दोगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अभिनव ये समझा गया? थोड़ा पढ़ाई करना है उसमें से, है ना। नहीं तो वो कॉल खत्म हो जाते हैं। हमारा काम कैसा है कि 0 वाले को 1 पे बढ़ाएं, 1 वाले को 2 कॉल्स करें अपन, समझे। नीरज, यस कर सकते हो, बट इतना मेंटरी नहीं है नीरज। अभी क्या है ना, सिस्टम टेस्ट सर्टिफिकेशन पे कोई भरोसा नहीं है। स्कैम इतना ऑनलाइन की वजह से बढ़ गया ना, सर्टिफिकेशन के डम्स आते हैं, किसको भी मिल रहा है आजकल सर्टिफिकेशन। नीरज आप समझे क्या, इस पे पैसे खर्च हो जाते हैं। नीरज, दिस इज रियलिटी, इट इज हार्श बट रियल है। तो इसके कारण देखो, आप ईमानदारी से दोगे, लोग चीटिंग करके दे रहे हैं, तो फिर क्या बोलेगा, हेड बोलेगा यार, है ना। तो सिस्टम टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, सिस्टम टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी में कौन सा आईडी यूज होता है?
यू यूज इंटेलिजिया, नेटबीन्स, कुछ भी कर सकते हो आप। इक्लिप्स भी यूज होता है, इंटेलिजिया आजकल ट्रेंड में है, विजुअल स्टूडियो ट्रेंड में है, बट इक्लिप्स तो अभी भी चल ही रहा है ना। सर पे करके ड्यूरेशन बढ़ा सकते क्या? यस, यू कैन एक्सटेंड द वैलिडिटी, पे द मनी, यस दैट्स देयर, ऑप्शन इज देयर, ओके, सो नो नीड टू वरी, ओके, यस। अभिजीत, आपको ये समझा गया? अभिनव, अभी खत्म हुआ है ना? अरे मुझे चाहिए लड़के, आप सिर्फ ना प्लेसमेंट की नंबर है क्या, वी नीड पीपल, क्योंकि मैं जब पूछता हूँ तो लड़के नहीं मिलते हैं। अभिनव, यू गॉट माई पॉइंट, प्लीज डू इट, मेरे को चाहिए लड़के, नहीं है बहुत ज्यादा, लड़के होते नहीं, क्योंकि कैसा है ना, देखो कोई कंपनी आती है बोलती है मेरे को अरे यार, फिर क्वेश्चंस, हाउ मच वी नीड टू पे टू इंक्रीज, ये सब सेल्स वालों का काम है भाई, ये मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, सेल्स वालों के रिवेन्यूज होते हैं, उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं कितने में माल बेचना है, कितने में माल खरीदना है। हेलो, ये सबको समझा गया मैच्योर्ड लेवल पे सबको? हेलो 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 एवरीवन, हेलो, दिस इज अ बिजनेस है, तो ये सब दूर रहे इससे। वो क्या है, मैं भी नहीं बोल सकता यश, क्या अननेसरी में बोलूंगा, ये धंधा है, लास्टली बिजनेस है ना। तो बिजनेस में कैसा है, उनके टारगेट्स होते हैं, समझ लो, बहुत ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू होता है, इफ यू आर एक्वायर्ड बाय सम कंपनी और वी बाय सम कंपनीज, तो फिर वो उसके हिसाब से डिसीजन, कभी कभी नेशनल हेड चेंज हो जाता है, एक सेल्स हेड आ जाता है, उसका दिमाग अलग चलता है, तो ये सब कैसा है ना, इट्स ऑल बिजनेस। जैसे गूगल का मैंने बोला, लोगों को निकाल दिया, इमोशनल सेंटिमेंट्स क्या है बताओ, बहुत बुरा हो गया। विप्रो ने ऑफर लेटर्स नहीं दिए, इमोशनली क्या लगता है, ओ बहुत सैड न्यूज है। कॉग्निजेंट 12,000 दे रही, ओ सो सैड। बट बिजनेस डिसीजंस तो बिजनेस डिसीजंस है, नथिंग कैन बी चेंज। फ्रेशर्स को सैलरी कम करना है, डिसाइड कर लिया उन्होंने, कम ही कर लेंगे, है ना। गाइज, एवरीबडी गॉट माई पॉइंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, फ्रेश योर माइंड, ओके, इट्स ऑल बिजनेस डिसीजन, या सो एवरीवन गाइज, आप कंपनी के इसमें आपका एक ही काम है, आपके हाथ में केवल एक चीज है, और वो है स्टडी स्टडी स्टडी, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कुछ भी अपने हाथ में मत रखिए। So that is how it is. Yes, you can increase validity by paying some money. Yes, 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 I already told. So guys, I think I solved many of the questions. Today it was more of placement oriented and it was really good. But guys, देखो आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं यार, हम आपकी पूरी मदद करना चाहते हैं। फ्रेशर्स को, अभी कुछ लोग पैकेज पे ही अड़ जाते हैं, मत अड़ो यार, मत अड़ो, ओके, सुदर्शन जस्ट पुट देयर, ओके, मत अड़ो, अभी सिचुएशन इज सो बैड, जो मिले जैसा मिले भाई, प्लीज गो अहेड, ओके, प्लीज गो अहेड। कहाँ तुम सब अभी आजकल बहुत बेकार, मतलब ये है, और आपको लगता है किरण कुछ करे, किरण भी कुछ नहीं करेगा ना भाई। देखिए मैंने क्या डाला अभी गूगल पे, गाइस बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। सुनो, everybody is interviewing for the same position, how I will be stand out differently, how I will be stand out uniquely, this will come if here you know how to implement this, how to implement this. Next, exactly in Java where this is implemented, मतलब स्ट्रिंग क्लास है ना, तो आप स्ट्रिंग क्लास के अंदर की बातें जब करना चालू कर दोगे ना, then it looks like कि oh you are doing something research level thing, okay, and you have done it, okay. When you say in this question getter and setter can have different name also, then you are showing off your knowledge, सुदर्शन, ओके, आप दिखा रहे हो कि हाँ भाई, मतलब गेटर सेटर तो एक बहाना है, गेटर सेटर व्हाई वी आर राइटिंग, जस्ट फॉर टेकिंग अ वैल्यू एंड गिविंग अ वैल्यू। दूसरी चीज, if needed you can add validation code in setter method so that you can control values in variables,
हेलो, ये सबको समझा? सुदर्शन, डिड यू गेट द पॉइंट? ये शो ऑफ जब करोगे ना, ये लड़कों में नहीं है आज की डेट में सुदर्शन। तो अगर ये आपके अंदर स्किल है ना, और ये तब आएगी जब आप एक टॉपिक पे थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च करोगे, ज्यादा स्टडी करोगे, ज्यादा उसको प्रैक्टिकली करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। सुदर्शन, यू गॉट माय आंसर? अरे लिस्ट है तो, और लिस्ट का उल्टा सीधा सब आना चाहिए, ठीक है। मुस्कान, कोई कंफ्यूजन मत करो, देखो लास्ट क्वेश्चन में ले ही लेता हूं। नो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज गाइस कि ज्यादा ओपनिंग, ओपनिंग से नहीं होता है मुस्कान। यू नीड टू क्रैक इवन इफ अ सिंगल इंटरव्यू इज गिवन, ये समझे मुस्कान? आप प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद द ओपनिंग्स, डोंट गेट कंफ्यूजन विद द पैकेजेस। इफ यू एबल टू गिव आंसर, सी hundreds openings are there, doesn't mean that you get selected, even not the chances, because they have set of questions, you need to answer those। एक कंपनी में ओपनिंग, अभी जैसा आप ना, सुनो मुस्कान, ऐसा सोचो आप किसी बंदे को हायर कर रहे हो घर क्लीन करने के लिए। आप मुझे बताइए, आप कभी सोचते हो क्या ऐसे हजारों लोग साफ सफाई के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं तो मैं ज्यादा लू कम लू? आपका क्राइटेरिया कभी चेंज होगा क्या मुस्कान, ये मुझे बताइए। मुस्कान, डिड यू गेट माय पॉइंट? आप कभी ये सोचते हो क्या कि दूसरे लोग भी तो साफ सफाई के लड़के ले रहे हैं? नहीं नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं ले रहा साफ सफाई का, मैं ले रहा हूं केवल। ये कभी आपके दिमाग में आएगा क्या? नो। रिक्रूटर को इससे कोई मतलब नहीं है। रिक्रूटर बोलता भाई मेरे को चाहिए, तू मेरे को आंसर दे, मैं ले लूंगा। रिक्रूटर ये नहीं बोलता कि हजारों रिक्रूटर्स मेरे जैसे ले रहे, हम बोलते हैं वो। रिक्रूटर्स नेवर से दिस। सो मुस्कान, फॉर यू एवरीथिंग इज सेम, यू नीड टू आंसर, दैट्स इट। देन इवन एक ओपनिंग है और हजार ओपनिंग है। अब मैं बताता हूं आपको, हमने ऐसा भी ट्रायल किया है, एक लड़के को हमने 42 कॉल्स दिए, एक में भी नहीं हुआ उसका। लास्ट ही बोला भाई अभी तो तू चले जा। गाइस, यू गॉट माय पॉइंट? हेलो, 42 इंटरव्यूज एक लड़के को दिए थे, नहीं हो पाया। दैट वाज जस्ट रिसर्च बेस्ड थिंग वी डिड। तो बताइए ज्यादा कॉल से भी होता है क्या? अगर आप एक कॉल लेने के बाद प्रिपरेशन नहीं करते हो, जो गलतियां हुई उसको सुधारते नहीं हो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप पहले कॉल में भी नहीं बता पाए तो आखिरी कॉल में भी नहीं बता पाए, तो भाई नहीं होगा। यू हैव टू इंप्रूव ऑन दैट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अनलेस यू इंप्रूव देयर इज नो वे। मुस्कान, आपको भी समझा? या सर, स्टार्टअप कंपनी में लग गई तो यस, ऐसा आजकल सब लोग सुनो, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी सेटल नहीं है। अक्षय, ये समझे क्या भाई? कहीं पे भी ना ऐसा है ही नहीं कि आज सेटल किसको भी। इन्फोसिस ले लो, हजार लड़कों, अभी तो इन्फोसिस लेती ही नहीं है, पहले लेती थी हजार, और उसमें से 600 लोगों को मैसूर में जाके उधर के उधर ही उनका पत्ता काट लेती थी। ये समझा क्या अक्षय? हेलो सब लोग, तो सेटलमेंट कहीं नहीं है। It's a part and parcel of our life. We have to change this mindset. Yes, guys, सब लोग एक चीज को फॉलो करें। ये लड़के ने दिया है मुझे, पढ़िए सब लोग ये। एंड सेटलमेंट इज ऑल्सो सेकेंडरी, उतना मत सोचो, ये कोई शादी नहीं है। क्यों शादी में हम नहीं सोचते क्या 10 साल बाद भी लड़की कमाते रहे, लड़का कमाते रहे, काइंड ऑफ इट इज जस्ट एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड यू। कल का नहीं पता, उसकी कंपनी डूब जाए, अपने को निकाल दे, अपने को नहीं पता दूसरी जगह ज्यादा पैकेज मिले, हम चले जाएंगे। So there is nothing, guys. Okay, first only thing is you must get a job. That's it, guys. I hope I solved many of the questions. If still remain, I'll be coming back again on the next weekend. Okay, and I hope यश, यही तो है, इसलिए बहुत कम हायरिंग हो रही है कि 1-2 घंटे में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यही इसी को जिसने जीत लिया, 1-2 घंटे को जिसने जीत लिया, कष्ट होगा आपको, और पर यही बात है, मतलब जो इस फ्रस्ट्रेशन को निकाल सकेगा, ओके, वही आगे जा पाएगा। ठीक है, यस यस सुदर्शन, आई विल बी कमिंग एवरी सैटरडे 12 PM हियर, एंड आई एम टॉकिंग टू पीपल, उनके कंसर्न्स लेता हूँ, मुझे भी आपसे कंसर्न्स मिलते हैं, मैं भी मेरी कंपनी को इम्प्रूव करता हूँ आपके फीडबैक से। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई एम ओनर,
who want feedback to improve. मैं पर्सनल लेवल पे भी जाता हूँ, किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट, ओके, बट आई ट्राई माई बेस्ट। तो सब लोग देखिए, कष्ट देखो, एक से होता है सुख। सुख कोई चीज नहीं होती गाइस लाइफ में, कष्ट नहीं होता तो उसको सुख बोलते हैं हम। जैसे यश, आप 2 से 3 घंटे में लॉग आउट कर लेते होंगे ना, तो आपको लगता है वाह बढ़िया हो गया। तो ये सुख वाली जो भावना है वो कब आई, जब आपने कष्ट नहीं किया। हेलो यश, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अपने हाथ में कांटा चुभा, हम बोलते दर्द हो रहा है, नहीं चुभा तो हम खुश नहीं होते। बताइए होते हैं क्या गाइस सब लोग? मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया आपको, हेलो, अनम्यूट कर यस सकते सर। हो? यस सर। देखो ऐसे कांटा डाला, ओ दर्द हुआ, पर कांटा गया ही नहीं, हम सोचते भी नहीं उसके बारे में। मतलब सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। कष्ट नहीं हुआ तो सुख हो जाता है, दैट्स इट। एक तो कष्ट होता है या तो कष्ट नहीं होता है, और उसको हम सुख मान लेते हैं। तो इस यस सुख सर। से आपको दूर हो जाना है। यस सर। सही है कि नहीं है? कभी भी नहीं, देखो, जॉब लगने का प्रयास करेंगे, नहीं लगा तो हमको कष्ट होगा, करेक्ट। लगा तो फिर से जैसे कि वैसे बन जाएंगे 4-5 दिन बाद। मुझे आप बताइए, जितने भी लोग जॉब को जाते हैं हंसते हंसते जाते हैं क्या, वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऐसा करते जाते हैं क्या? नहीं यश, सर। नहीं सर। जॉब लगना नहीं लगना एक कष्ट है, लगते ही यस। उसको सुख में परिवर्तित करते हैं हम, और कुछ दिनों बाद वो भी कष्ट बन जाता है। जॉब भी कष्ट है, कितने फ्रस्ट्रेटेड है आपको पता है ना जॉब में लोग। यस सर। जिस चीज के साथ आपका मिलन हो जाता है वो चीज आपको पसंद नहीं आती है। तो आज आपके लिए कष्ट है जॉब मिलाना, जिस दिन आप जॉब के साथ मिल जाओगे ना, तो वो भी फ्रस्ट्रेटिंग होने लगेगा। बोलेगा अरे यार कब छोड़ू मैं, कब खेती करने जाऊँ, कोई धंधा कब खोलूं मैं। यस। तो जिस भी चीज के साथ मिलन हो जाता है, दैट मेक्स यू फ्रस्ट्रेटेड। मैं पहले सर हल्दी बिजनेस लगे ही एक साथ करता शादी। था। हाँ। बिजनेस करता था, वो ड्रॉप कर दिया कि जॉब कर लेंगे, क्योंकि उसमें लॉस हो गया तो मैं उसको ड्रॉप कर दिया। अभी नहीं इसमें भी ड्रॉप कर दूंगा तो फिर बहुत नहीं ज्यादा। नहीं, तो आप लास्ट ऑप्शन लेके बैठिए। ऐसा सोचो कि अभी नहीं किया ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ भाई, थोड़ी भी स्पीड से चला ली तो भी खत्म हो जाएगी। आखिरी चांस लेके चलो, और ओके। रात दिन सोना बंद कर दो। यश, अगर आप सोए नहीं तो कितना बीमार पड़ोगे बताओ? ज्यादा कुछ नहीं होगा सर। 400-500 में सुधर जाते हैं, अपनी उम्र ही क्या है, एज क्या है ना। तो सो यस सर। मत। जब आप सोते हो ना लाइफ में, तो इट्स अ डेड बॉडी, राइट, ओनली उसकी नाक से सांस आते रहती जाते रहती है, बाकी वो है क्या। यस चार सर। से 5 घंटे सिर्फ सोने का समय करो, 3 घंटे रील्स वील्स टाइम पास कर लो, बाकी बचा हुआ समय ना धनाधन 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 पढ़िए। यस सर। यश, समझे या नहीं? हाँ सर, समझा। कोई चीज ऐसी नहीं जो संभव नहीं है। अरे क्या क्या नहीं कर दिया लोगों ने, बताइए। हैंडीकैप लोग ओलंपिक में जाके मेडल ले रहे हैं, और आप क्या है? सही है। इंसान ही ऐसी चीज है जो सुख को उपभोग करती है। यश, ये समझे? यस सर। कोई जानवर आपको हंसते हुए दिखता क्या? नहीं। ये इंसानों को भगवान ने दी हुई चीज है, और उसका उपभोग इतना ले लेते हैं हम कि हम उसको भी, मतलब क्या ही बोलूं मैं। तो कहने का मतलब ये है, आपको इतना अच्छा खुशी होने के लिए हमको ऐसा जानवर बनाया लो भगवान ने, तो उसका फायदा लेते हैं जरा, और आगे बढ़ते हैं। हर चीज को पॉजिटिव लेने का, टेंशन नहीं लेने का, पर पढ़ाई करने का। यश, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 घंटा रील देखो, पर 1 घंटा पढ़ाई कर सकते हो कि नहीं रील? ओनली स्टडी इज इम्पोर्टेंट। यस। यस यस। यस। यश, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, 1 घंटा हाँ। टाइम पास करेगा, पर 1 घंटा पूरा मोबाइल फोबाइल फेंक देने का उधर, और ये एक ओके। घंटा टकाटक, तो फिर भी 16 घंटे में से 8 घंटे तो स्टडी होगी। जी सर। फिर 1 घंटा हो गया, फिर खूब मोबाइल पे टनाटन टनाटन देखो, फिर 1 घंटा बिल्कुल बंद। यस ये सर। हुआ खुद के ऊपर कंट्रोल, ये हुआ खुद के ऊपर। या सुपर 30 सुपर 20 ऐसी कोई बैच नहीं है, इट इज जस्ट गिविंग बैक टू सोसाइटी, कि हम उन लोगों को कुछ हेल्प करना चाहते हैं जो लोग रात दिन पढ़ रहे हैं, उनसे और रात दिन पढ़वाने का ट्राई करते हैं। मंजुनाथ, आपको समझा ना? वी इवेल्युएट देम, 2-2 घंटे उनके इंटरव्यूज होते हैं, और उनको फिर एक जगह बिठाते हैं, हम बोलते हैं भाई तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई नहीं करता है, तो उसको एक रूम में बंद कर देते हैं लॉक लगा के, उसको सिर्फ खाने के लिए 1 से 2 घंटे की छुट्टी मिलती है, और सवेरे उनको टास्क दे दिए जाते हैं, छुड़ाओ ये प्रॉब्लम, और छुड़ाते रहते, कोई हेल्प नहीं, कोई कुछ नहीं। मंजुनाथ, यू गॉट माई प्रॉब्लम, यू गॉट माई आंसर मंजुनाथ? कुछ भी नहीं, उनको एक रूम में बंद कर देते हैं, पर वहां पे हम उनको पूछते, देख करने को तैयार है कि नहीं है, इस टाइप से। मंजुनाथ, आफ्टर अ कोर्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यू कैन अपियर फॉर दैट, यू विल गेट मैसेज। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। कष्ट लीजिए थोड़ा सा, ठीक है? थैंक यू सो मच। आई विल बी कमिंग अप अगेन नेक्स्ट सैटरडे। या थैंक यू सुदर्शन, थैंक यू एवरीवन गाइस, एंड आई होप दिस मेक्स यू something aware of the things, aware of the market.
या अक्षय जॉब वालों को टाइम नहीं मिलता स्टडी करने के लिए, ना ना, जॉब वालों को टाइम ही नहीं मिलता सुख को उपभोग लेने के लिए। ओके, उनका इतना हालत खराब करते रहते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन।